ગુડ મોર્નિંગ બાળકો. ઘરે કેવી મજા આવે છે? મને લાગે ત્યાં સુધી તમને લોકો ઘરે મજા તો નહીં જ આવતી હોય. મમ્મી રોજ બોલતી હશે આમ ના કરો તેમ ના કરો, એવું બધું છે. આના કરતાં તો સ્કૂલમાં સારા ટીચર આટલું બધું નથી બોલતા. મમ્મી ટોકે છે ને ઘરે વરસાદ પડે બહાર નહીં જવાનું, હે ને? ચલો આપણે શું કરીશું? પહેલી શરૂઆત આપણે એક શ્લોકથી કરીશું. કયો શ્લોક બોલીશું? પહેલા હાથ જોડીને આંખો બંધ કરી દો તમારી. મારી સાથે સાથે તમે પણ બધા બોલજો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ તસ્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. ચલો અત્યારે શું પડી રહ્યું છે? વરસાદ પડે છે બધાના ઘરે? મજા આવે છે? બધા નાહવા ગયા? हाँ, तो चलो આપણે એક વરસાદનું બાળગીત કરીશું. મારી સાથે સાથે તમે બધા પણ ગાજો. ચલો बारिश आई छम छम छम. ફરીવાર ગાજો. बारिश आई छम छम छम. छाता लेके निकले हम, कहीं पे छाता कहीं पे हम. बारिश आई छम छम छम. આપણે શું કીધું હતું? આપણે હિન્દીમાં બોલીશું, તો હિન્દીમાં પણ બોલીશું, સાથે ક્યાંક ગુજરાતી પણ આવી જશે. બરાબર? આપણા ક્લાસમાં એવું થાય જ છે કે ગુજરાતી હિન્દી બંને મિક્સ થઈ જાય છે, પણ આપણે થોડું થોડું હિન્દીમાં બોલીશું. तो चलो हम क्या सीखने वाले हैं आज? क से ज तक. हमने पहले सिखाया था. तो क से क्या क्या होता है? चलो पहले मैं आपको फटाफट सिखाती हूँ. ये क्या है? क. क्या है ये? क. हिंदी में इसे क कहते हैं. उसको गुजराती इसका क्या होता है, कैसे लिखते हैं, है ना? बराबर. क से क्या क्या होता है और कौन से चित्र हमने सीखे थे? क से कमल. फिर क से और क्या होता है? आप अपने आप बोलो, बोलो बोलो, क्या होता है क से? हाँ, कलम, यानी हमारी जो पेन होती है ना वो. फिर क से कैंची, है ना आपके सबके घर में. फिर कंघी, सब क से होता है. फिर क से कमल, कलश, कबूतर, ये सब क से होता है. फिर कछुआ. फिर ऐसे और शब्द भी आप अपने आप ढूंढ लेना. अब देखते हैं ख. चलो ये क्या है? ख. ये हिंदी में ख है. इसका गुजराती कैसे होता है? ओके. ख. ख से क्या क्या होता है? बोलो. ख से खरगोश. ख से ગુજરાતીમાં કહીએ તો ખથી ખડીયો. આપણે સહી કરીએ ને એનો જે એની સીસી હોય એના પહેલાના જમાનામાં શું કહેતા હતા? ખડીયો કહેતા હતા. અત્યારે તો આપણે બોટલ જ કહીએ છીએ, પણ પહેલાના જમાનામાં આને ખડીયો કહેતા. બરાબર? પછી ખથી શું થાય? ખરગોશ એટલે શું થાય? સસલું. સરસ. પછી બીજું શું થાય? ખથી ખ્યાલ છે તમને? કઈ બીજું? ખપરેલ. તમારી ચોપડીમાં છે, તમે જોજો. ખપરેલ એટલે આપણા ઘરની ઉપર નળિયા હોય છે ને, જે એ નળિયાના હિન્દીમાં ખપરેલ કહેવાય. બરાબર? પછી ખંભા એટલે કે થાંભલો હોય, તો થાંભલાને શું કહેવાય? ખંભા. ખબર પડી? ખમા. હવે આપણે જોઈશું ગ. આ હિન્દીમાં ગ. એની સામે શું થશે? ગ. ગતિ શું થાય?
तो ग से गमला, फिर ग से गधा, गमला એટલે તમને ખબર છે શું કહેવાય આના? તમારા ઘરમાં જાઓ કુંડુ, શું કહેવાય? કુંડુ, બરાબર? બધાએ શું કરવાનું? અત્યારે ચોમાસું છે તો આપણે બધા શું કરીશું? ગરમી પણ બહુ લાગે છે તો આપણે શું કરવાનું? દરેકે એક એક ઝાડ વાવવાનું, બરાબર? ઝાડ ના વાવો તો છોડ પણ એક હોવો જોઈએ. શેમાં વાવશો? તમારા ગમલામાં, એટલે કે કુંડામાં. અને પછી રોજ એને પાણી પીવડાવવાનું, એટલે ધીમે ધીમે મોટું થાય, બરાબર? પછી ઘસે ગધા, શું થાય? ઘસે ગધા, બરાબર? ચલો ઘ પછી બીજું શું આવશે? બીજું શું થાય ઘથી? તમે તમારી જાતે વિચારો તો ઘસે ગધા. પછી ગન્ના, ગન્ના એટલે ખ્યાલ છે તમને લોકો? તમને એનો રસ બહુ ભાવે, ખબર છે? તમે ઉનાળામાં બહુ જ પીતા હશો. ઘસે શું થાય? ગન્ના. ગન્ના એટલે શેરડી, શું થાય? શેરડી થાય, બરાબર? પછી ગજરા, ગજરા એટલે આપણે અહીંયા ઓછી નાખતા હોઈએ છીએ માથામાં વેણી, પણ બહાર બધાએ વધારે નાખી હોય આઉટ સ્ટેટમાં. ગજરા એટલે માથામાં વેણી નાખીએ ને એને ગજરા કહેવાય. અને બીજું આપણા ગણપતિ, શું થાય? ગણપતિ, બરાબર? હવે આપણે લઈશું મોટો ગ. ચલો ये क्या है? घ. घ से पहला गुजराती में શું થશે? घ. चलो घ से क्या क्या होता है? तो घ से घर, તમે રહો છો ઘરમાં, હે ને? હા, આપણું ઘર હોય એ રહ્યું, તમે જે એમાં રહો છો. ઘ से ઘર. પછી ઘ से આ શું છે? ઘડી. આને પણ ઘ से ઘડી. ઘડીને શું કહેવાય? ઘડિયાળ. શું કહેવાય? ઘડિયાળ. પછી ઘ से ઘોડા. બેઠા છો બધા? સવારી કરી છે ઘોડા ઉપર? આ ઘડી. ઘ से શું કહેવાય? ઘડી. दीवार घड़ियाल છે ઘરમાં? देखो अपने अपने घर में घड़ी दिखाई देती है? हाँ, तो घ से घड़ी. फिर क्या क्या आता है? घर में क्या है? घ से अपने आप चलो ढूंढो तो, थोड़ा सोचो. पानी कहाँ से पीते हो? पानी. हमें माटी को गुजराती में एने शू कहेवाय? हिंदी में घड़ा. क्या बोलते हैं उसे? घड़ा. फिर मग्गर आता है ना, मग्गर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घड़ियाल. क्या बोलते हैं? घड़ियाल. અને પેલું શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ઘડિયાળ. और मगर को क्या बोलते हैं? घड़ियाल बोलते हैं. घड़ी, घड़ियाल, और ये सारे शब्द हमारी चौपड़ी में है. और वहाँ उसमें आप देखेंगे कि वहाँ आपको क्या करना था? घ से सब चित्र को जोड़ना था. तो ये सब आपको आना चाहिए. फिर क्या लेंगे? च. घ के बाद क्या आएगा? च. गुजराती में कैसे होता है ये वाला च. च से चरखा. गुजराती में बोलो तो च चकलीनो च આપણે બોલીએ છીએ. ચ ચકલીનો ચ એ બોલીએ છીએ ને. તો ચ से चरखा. તમે ચરખો નહીં જોયો હોય, હું તમને આજે બતાવું. જોયો છે આવો ત્યાં ચરખો? આ કોણ વાપરતું હતું? તમને ખબર છે ચરખો? ક્યાં જોયો છે તમે લોકોએ? તમે લોકો અમદાવાદ ગયા છો? સાબરમતી ત્યાં કયો આશ્રમ છે ખબર છે તમને લોકોને? ગાંધી આશ્રમ. ગાંધી આશ્રમના તમને તમે આજુબાજુ રોડ પર દેખાશો ને તો બી ઘણા બધા ચરખા આમ દોરેલા દેખાશે તમને. એના ચિત્રો બધા ઘણા છે. જોજો અને ખાસ કરીને જોજો. તો આને શું કહેવાય? ચરખો. इस चरखे से क्या होता है? क्या बनाते हैं इससे? हमारे ये कपड़ा होता है ना जो पहनते हैं हम, वो इससे बनता था पहले. अब तो हम मशीन में बनाते हैं. पहले के जमाने में इससे बनता था. और ये कौन चलाता था? गांधी जी. कौन चलाता था ये? गांधी बापू चलाते थे हमारे.
च से फिर क्या होता है? चम्मच। च से क्या होता है? चम्मच। फिर हम जो वहां नीचे बैठते हैं ना, तो कुछ नीचे रखते हैं, फिर इसके ऊपर बैठते हैं। तो कोई मेहमान आए तो क्या रखते हैं ऊपर? चटाई। क्या रखते हैं? चटाई। फिर हमारे यहाँ पापा जाते होंगे ऑफिस, तो ऑफिस में कौन होता है? कौन होता है वहाँ काम करने वाला कि जो पापा को पानी पिलाए, है ना, फिर वो झाड़ू पोछा करे, उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? चपरासी। क्या बोलते हैं? चपरासी। जो काम करते हैं ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं? चपरासी। चलो, च के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? छ। ये हिंदी में छ है और ये गुजराती में। छ से क्या होता है? चलो, अभी बारिश होती है, सुनिए ना, याद करो। हमने पहले वो बाल गीत था ना, उसमें आया था। छ से क्या होता है? आप लोगों को तो बहुत पसंद है ना, अभी लेके निकल भी गए होंगे बाहर। हाँ, बोलो बोलो, याद करो। छाता। सही बात। छ से क्या होता है? छाता, यानी कि छ से छतरी। क्या बोलते हैं? छ से छतरी, छाता। फिर दूसरा क्या होता है? छ से बुक्स लेके बैठे हो, देखो, चलो अंदर। फिर छड़ी। घर में दादा है, दादा के पास क्या होती है? उनको चाहिए ना, उनकी उम्र हो गई है तो वो क्या लेके घूमते हैं? छड़ी। वो गिर ना जाए ना, इसलिए अगर इधर उधर हो जाए ना, आप बच्चे हैं, दादा को देनी चाहिए कि दादा लो, छड़ी लेके जाओ बाहर, वरना गिर जाओगे। तो क्या देना चाहिए? छड़ी। लाकड़ी बोलते हैं ना, वो। फिर छ से छवि। छवि यानी आपके घर में आजू बाजू देखो कोई चित्र लगा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? छवि। क्या बोलते हैं? छवि। फिर छकड़ा। छकड़े में जाते हो आप लोग घूमने के लिए, बाहर जाते होंगे ना, तो छकड़ा आता है, तो हम छकड़े में क्या करते हैं? सवारी करके ऊपर बैठ के जाते हैं। बच्चों को बहुत मजा आती है ना। चलो, छ के बाद क्या आएगा? ज। ये छोटा वाला ज। गुजराती में શું કહેવાય આને? જ। બરાબર? જ થી આપણે શું બોલીએ છીએ? જ થી જ જમરૂખનો જ। ગુજરાતીમાં શું બોલીએ છીએ? જ જમરૂખનો જ। और हिंदी में क्या बोलेंगे? ज से जहाज। क्या बोलेंगे? ज से जहाज। और क्या क्या बनता है? जहाज देखा है? बैठे हो आप लोग जहाज में? कहाँ पे जाता है? रास्ते में? रास्ते में जाता है? हवा में जाता है ना? हवा में जाता है ना, ये उड़ता है ना। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, जहाज में बैठे हो तो कहाँ में? ये कहाँ पे जा रहा है? तो पानी में। जहाज ये बड़ा वाला जहाज है तो कहाँ होगा? दरिया में। कहाँ पे? दरिया में। फिर जैसे क्या होता है? बोलो, आप लोग खाते होंगे, आप लोगों को बहुत पसंद है। गोल गोल जलेबी। क्या खाते हैं? जलेबी। और फिर जैसे क्या होता है? जल। जल यानी कि पानी। पानी होता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? हिंदी में जल बोलते हैं। फिर आपके घर में जग होगा, उसको भी क्या बोलते हैं? ज से जग। जग ना गुजराती में अपन जग ज कहेवाय, और हिंदी में भी जग बोलते हैं। तो क्या क्या हुआ? जैसे जग, जल, जलेबी, जहाज और कई सारे शब्द होते हैं, है ना। चलो, अब हमने क्या क्या सीखा? कितने अक्षर हमने सीखे? मूलाक्षर तो क, ख, ग, च, छ और ज। आप लोगों को जितने भी आपकी नोट में बाकी है, ये सब अपनी नोट में लिखना है। आप घर पे बैठे हो ना, तो कुछ ना कुछ तो करोगे, तो ये सब आपको क्या करना है? अपनी नोट में क से ज तक लिखना है। जब आप स्कूल में आओगे तब हम ये देखेंगे। क्या करना है? क से ज। ओके, बाय।
હા ખબર આવી જાય